Hello, students. Hello, dear students. As you all know, we have completed the EIT 6. And now in this session, we are going to discuss the question and answers of, some of the questions. We are not taking all, we cannot take all. But yeah, we have taken most of the questions which are very important and which might be needed a very good discussion on that. Okay, so that we are going to do it in this class. All right, so let's start with the class. All right. So the first question, kingdom consists of organisms with low specificity in their character. Genus consists of organisms with more specificity in their characteristics. Select the correct option. Okay. So you have to select the correct option here based on the statements that are given in 1 and 2. Okay. So what they are saying, kingdom. Okay, we know the taxonomical hierarchy. It starts with the kingdom and goes up to the species. All right. तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, okay, with this diagram. So this is the levels of classification, or you can say taxonomical hierarchy. And you know that the very important points on this you must definitely know is that, okay, when you go above, okay, above matlab from species to kingdom, when you move from species to kingdom, the specificity, okay, the specificity becomes less. Okay, so in kingdom we will find very less specificity, whereas when it comes to genus and species, where you will see more specificity. Okay, and coming to common characters also it goes same. Okay, so किंगडम के पास आपको बेटा कॉमन कैरेक्टर्स क्या दिखेंगे, कम दिखेंगे, और यहाँ पे भी आपको ज्यादा दिखेंगे. ठीक है. तो स्पीशीज की तरफ ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स, किंगडम की तरफ कम दिखेंगे, एंड सेम गोस विद द स्पेसिफिसिटी. ठीक है. Right. So here I have written one definition, one small statement. Most specific classification is species. Okay, that is the most one, most specific. Least specific is kingdom. Okay. So here in this question, what they say, kingdom consists of classifications with low specificity. This is correct statement. But look at the second statement. Genus consists of organisms with more specificity in their characteristics. Yeah, that's correct. So genus also have more specificity, but it is not saying most specificity. If they have used the word most, then the answer would be not genus but species. But they are very clever. They have used the term genus but not species. So what we have to do? We have to tick it as correct only. Okay, because of the word more. But a genus में तो more specificity है, but most is in the species. Okay, hence both the statements are correct. So answer for this question would be D. Okay, that is both A and 1 and 2 statement. All right, so both are correct. Next question. So here you can see, select from the following the total number of features that belong to animal kingdom. Okay, A, multicellular heterotrophic. B, most of them capable of location, have definite shape and size. Digestion of food is in internal cavity. Holozoic mode of nutrition. Stored food reserve as glycogen or fat. Higher forms show sensory and neuromotor mechanism. Some members are autotrophic, presence of cell wall, cellulosic cell wall. Sexual reproduction generally by copulation of male and female. Okay, so options are 6, 7, 8, 10. All right, so here we will be seeing this in the kingdom Animalia. Okay, so kingdom Animalia की बात हो रही है, तो आप क्या देख सकते हो बेटा? So here A, multicellular heterotrophic, very true. Okay, so all animals are multicellular and they are dependent on autotrophs. Okay, हम लोग खाना नहीं बना सकते, we are heterotrophs. ठीक है, and most of them are capable of location. Definitely, we have legs. Okay, so we have legs, we have hands, so we are definitely locomotive. Okay, then have definite shape and size. Yes, definitely. Okay, humans have a definite shape and size. Frogs have a definite shape and size. Like, frogs are amphibians, but still I'm saying, okay, you can say an elephant has a definite size and shape. A lion has one, cheetah has one, dog has one. Okay, so this is also a correct statement. Now, digestion of food is internal, definitely. Okay, बेटा digestion of food बाहर तो नहीं होता ना, आपके body के अंदर होता है. Okay, that is in the internal system. So this is also correct. Okay, holozoic mode of nutrition, definitely. आप
एनिमल किंगडम में आप देख सकते हो, खाना वो बेटा हाथ से लेके ऐसे खाते हैं थ्रू ओरल कैविटी. इट passes through the esophagus going to the digestive tract, okay, stomach to digestive tract, and then passing out through the anus. Okay, so that is also a mode of nutrition. Even this is also correct. Okay, so stored food reserve as fat or glycogen, yes, definitely. Okay, animals में बेटा glycogen के रूप में store होता है, but when it comes to plants, it stores in the form of starch. ठीक है. Then higher forms show sensory and neuromotor mechanism. Definitely. Okay, we show sensory and neuromotor mechanism. Okay, some members are autotrophic. Definitely not. Presence of cellulosic cell wall. No, this is a characteristic feature of plants, not animals. Okay, sexual reproduction generally by copulation of male and female. Yes, definitely true. तो कितने हो गए आप काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so answer for this question would be C. Okay, so this is the correct answer for this question. Right, two are wrong statement. Autotrophic and cell wall. Clear? All right. So coming to next question. 106. How many features are incorrect for lichens? Okay. Slow growing annual plants, water pollution indicator, predominant phycobionts as green algae, autotrophic partner may be prokaryotes or eukaryotes, major fungal partner as club fungi. Okay, you can take some time. You can take some time, think the answer. If you have correctly answered it in the examination hall, then you might have been, have the clear idea of what the answer would be. But जिस बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा उनको भी डरने की जरूरत नहीं है. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ. Okay, so we are talking about lichens. Who are lichens? Lichens are, the symbiotic association of fungi and algae. Okay, so algae and fungi का association से बेटा बनता है lichens. ठीक है. So there are many types of lichen like crustose, foliose, fruticose. ठीक है, ये सारे lichens होते हैं. तो these are, not plants. ये plant की category में नहीं आते. These are a different category. Okay, so when you say slow growing animals, sorry, annual plants, no, this is definitely wrong. Okay, then water pollution indicator, no beta. Lichens are very sensitive to sulfur, sulfur dioxide. तो आप यहाँ पे देख लो. I have given some definitions here. So lichens are symbiotic association between algae and fungi, have unique morphology distinct for both partners. ठीक है, कुछ algae के characters distinct है, कुछ fungi के हैं. Then litmus is a blue dye extracted from various species of lichens, especially Rossella tinctoria. ठीक है, Rossella tinctoria is a species of lichen through which we extract a blue dye. Okay, that is litmus. Okay, with litmus paper आप लोग केमिस्ट्री लैब में बहुत यूज करते होगे टू चेक द पीएच. ओके, एसिडिक और बेसिक पीएच को चेक करने के लिए आप लिटमस पेपर यूज करते हो. दैट इज ब्लू डाई. Alright, then lichens are very sensitive to sulfur dioxide. I told you, right? So that is why these lichens are a very good indicator for air pollution. तो air pollution के लिए बहुत अच्छा indicator है. Okay, and you can also see when these lichens are exposed to this pollution, air pollution, so then बहुत टाइम तक वहां पे एक्सपोज होके रहते हैं तो वो डेफिनेटली lichens become the indicator of the air pollution. You might wonder, okay, these cities, metropolitan cities doesn't have lichens. Only lichens would be found in the forests. ठीक है, जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हो, जंगल हो, तो वैसे कंडीशंस में आपको lichens देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, पत्थर के ऊपर लाइकन होते हैं, झाड़ों के ऊपर लाइकन्स होते हैं, पत्थर, द स्टोन्स, उनके ऊपर भी होते हैं. ठीक है, so that would be an important thing. Then, if air is very badly polluted, then there may be no presence of lichens. Okay, so that here says the water. Definitely no, it is air pollution indicator. Then, predominant phycobionts as green algae. हाँ, ठीक है, फाइकोबायोंट ग्रीन algae हो सकता है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. देन ऑटोट्रॉफिक पार्टनर में भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, हाँ ये भी हो सकता है. दो भी हो सकते हैं. मेजर फंगल पार्टनर इज क्लब फंगाई. नो, क्लब फंगाई आर, दिस आर बेसिडियोमाइसीट्स. अब जो कहते हो ना मशरूम या फिर अगैरिकस, ओके, एनाइरा अमानिटा, ये सारे बेसिडियोमाइसिस माइसिट्स में आते हैं. सो विच वी कॉमनली कॉल देम एज क्लब फंगाई. So those are definitely not the composition of lichen. So incorrect statements would be A, B and E. Okay, A, B and E है. तो आप अगर options में देखोगे तो B would be the answer for this question because you are choosing for the incorrect statements of lichen. ठीक है, तो ये ठीक हो गया. This is correct. B is correct. All right. Okay. Coming to next question.
Which of the following statements are incorrect? Okay, take some time, think, and then answer. Which of the following statements are incorrect? Viroids are classified by Whitaker in kingdom Monera. Okay, so viroids are classified by Whitaker in kingdom Monera. Virus are non-cellular organisms. Virus means venom, name coined by Stanley. Contagium, vivum fluidum, Ivanovsky. Virus or obligate parasite. Virus contains either DNA or RNA. ओके, आप वक्त लो, देखो, एंड देन कीप द माइंड, कीप द आंसर इन योर माइंड. ठीक है, आप अपना आंसर को अपने पास रखो, फिर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो तब कंपेयर करेंगे दैट आंसर वाज करेक्ट और नॉट. ओके, यस, टेक सम टाइम. ऑलराइट. So viroids are classified by Whittaker. Definitely no. बेटा Whittaker classification is a 5 kingdom classification. उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटे, एनिमेलिया. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वायरस वायरस तो उसमें इंक्लूड नहीं होते. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सो वायरसेस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दिस इज करेक्ट. ओके, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, आप खोल के देख सकते हो. वायरसेस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. देन वायरस मीन्स वेनम, हाँ दिस इज करेक्ट. कॉइन्ड बाय स्टैनली, नो, ये गलत है. वायरस का मतलब वेनम है, वो ठीक है. ठीक है, बट कॉइन बाय स्टैनली ये गलत है. ठीक है. कंटेजियम, तो इसीलिए स्टेटमेंट भी गलत हो गया. कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉल्ड बाय इवानोस्की, नहीं, ये दूसरा साइंटिस्ट से बोला था. ओके, बेजरनिक, तो उन्होंने बोला था, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, करेक्ट. वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, करेक्ट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हो गए? आप देख सकते हो ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. तो आप यहाँ पे सोल्यूशन भी देख लो, आपको पता चलेगा कि करेक्ट क्या है. सो इवानोस्की इज नोन एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी. ओके, एंड ही गॉट द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग टोबैको मोजेक वायरस. ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस को डिस्कवर करने का उनको क्रेडिट मिला था. किसको बेटा? इवानोस्की को. ठीक है, चलो. देन स्टैनली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग द वायरस वुड बी क्रिस्टलाइन. ठीक है, स्टैनली ने क्या बताया था? वायरस क्रिस्टलाइंड होंगे, एंड उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेट किया था टोबैको मोजाइक वायरस को. ओके, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय बिचरनिक. मैंने बोला था ना. तो ये उन्होंने क्या किया? पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ पे. ठीक है, साइंटिस्ट के नेम. ऑलराइट, चलो. तो यहाँ पे इवानोस की जहाँ पे डालना था वहां पे स्टैनली डाल दिया. ओके, बिचरनी की जगह पे इवानोस की डाल दिया. तो यहाँ पे आप देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें, तो विच वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ए, सी, डी, दैट इज, यू नो, सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट फॉर द साइकास. ओके, साइकास के बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. साइकास हैज अनब्रांच्ड स्टेम. Cycas is monoecious plant. In cycas, leaves are simple and needle-like. Cycas has protected nucellus by envelope. In cycas, pole and tube carries two functional male gametes. Okay, so I'm giving you some time. आप सोचो and then pick the answer. Okay, पढ़ लिया? चलो. So now cycas has unbranched stem. This is true. Okay, so this is true. This is correct statement. Cycas is unbranched. Okay, so when we compare it with the pinus, pinus is a branched one. Pinus के पास branching होती है, but cycas के पास नहीं होती. Cycas is monoecious plant. Definitely not. Cycas is a dioecious plant. Okay, pinus is a monoecious. ठीक है, तो ये wrong statement हो गया. In cycas, leaves are simple and needle-like. अब ये बताओ, अब क्या हो सकता है अब ये? ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें जानने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए डाली हैं, आप देख सकते हो. ठीक है, तो साइकास एंड पाइनस इज द कंपैरिजन. मैंने आपको कंपैरिजन में दिया है. साइकास एंड जिम्नोस पाइनस आर जिम्नोस्पर्म्स. ओके, इन साइकास लीव्स आर पिन्नेटली compound. Okay, they are pinnately compound. Simple needle like leaves are present. Okay, so cycas the stem is unbranched as I have told you, but pinus में it is branched. ओके, सो इट इज ब्रांच्ड. तो अब आप देख लो, इन पाइनस सिंपल, अब ये जो है यहाँ पे, दिस इज नीडल लाइक. ओके, सिंपल नीडल लाइक.
So this you have to see. Okay, so this is a characteristic feature of Pinus. Okay, it is a characteristic feature of Pinus. So cycas has protected nucellus by envelope. ओके, तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो साइकस के पास बेटा प्रोटेक्टेड न्यूसेलस होती है बाय द एनवेलप, ऑलराइट। देन coming to pollen tube carries two functional male gametes. Okay, so everything is correct here, but it is not holds good for cycas. It holds good for angiosperm. ठीक है, ये एंजियोस्पर्म का होता तो वहां पे बात ठीक होती, बट वी आर टॉकिंग अबाउट साइकास, सो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. So how many correct statements you have found here? Only 1 and 4. So answer for this question would be D, that is 1 and 4. ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा ना, देखो यहाँ पे साइकासिस डायशियस, okay, I told you साइकासिस डायशियस, that means sex are present on a separate plants. Okay, Pinus is a monoecious as sex are present on the same plant. Okay, both the sexes are present on the same plant, that is monoecious. ठीक है, and specialized feature of साइकास एंड पाइनस, ये मुझे आपको बताना था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया. Coralloid roots of cycas have symbiotic association with cyanobacteria. ओके, तो कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकास, साइकास के पास कोरोलॉइड रूट्स होते हैं जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है विद द साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, एंड दैट साइनोबैक्टीरिया हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन as they have specialized cells called heterocysts. The heterocysts which are present in the cyanobacteria, they are helpful in the nitrogen fixation. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब वो करते हैं रूट्स के साथ, तो उन रूट्स को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड रूट्स, दोज आर कोरोलॉइड रूट्स. ठीक है, देन द रूट्स ऑफ पाइनस हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगाई. ऑलराइट, तो जो पाइनस के रूट्स हैं बेटा, दे आल्सो हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगाई. ओके, सो व्हाट इज दैट एसोसिएशन, यहाँ पे आप देख लो. द फंगस हेल्प्स विद द एब्जॉर्प्शन of water and minerals for plants that provide nourishment for the okay fungus. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं बेटा माइकोराइजल एसोसिएशन. ओके, सो माइकोराइजल एसोसिएशन हम इसको कहते हैं, where pinus is associated with the root. Okay, pinus root is associated with the fungi. ठीक है, so that is mycorrhiza. I hope you remember it. Okay, very important. Then so coming to next question here. So I hope you got the clear understanding of that previous question. ठीक है, कुछ doubt है तो बेटा you can clear doubts with your respective teachers. Okay. Then match the column 1 with column 2 and select the correct option. So you have to select the correct option here. तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे agar. Okay, agar is a solidifying agent. So this agar is extracted from Gelidium. We all know that. Okay, तो agar जिसको हम कहते हैं, which is extracted from Gelidium. And chlorella and spirulina are the single cell protein used food supplements by space travels. Even this is true. अब आपको ये तो पता है तो बेटा आप आराम से आंसर ढूंढ सकते हो, मतलब ये तो बेसिक्स है, पता होना ही चाहिए. ठीक है, ए वन किस में है? ओनली इन द ए. ओके, अभी आप डी देखो, D4. ओके, सो देन यू कैन सी दी स्टोर ऑल्सो करेक्ट. B2 ब्राउन algae एंड C3 रेड algae. अर्जिन ब्राउन algae, कैरागिन रेड algae. ओके, सो सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत ही नहीं है. ओके, सो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉर्डेट्स आर नेम्ड फॉर स्केलेटल स्ट्रक्चर. ओके, कॉर्डेट्स को बेटा हमने नेम दिया है एज अ स्केलेटल स्ट्रक्चर क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड चीज प्रेजेंट है. ओके, दे हैव अ डैश प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियोस एज वेल एज इन सम अडल्ट कॉर्डेट्स. सो व्हाट इज दैट एक्स स्टैंड्स फॉर? ओके बेटा, जब हम लोग कहते हैं कि हाँ वर्टिब्रेट्स हैं, okay, so there are chordates. So chordates means there is the presence of vertebral column. Okay, we call it as a vertebral column. Okay, तो what is that vertebral column? Okay, common भाषा में बेटा spinal cord कहते हैं हम लोग. Okay, in other words, when we talk about the biological terminology, that is notochord. Okay, so notochord is that skeletal structure which is present in all chordate embryos as well as in some of the adult chordates. ठीक है, तो adult chordates में भी आपको देखने को मिलेगा and embryos में तो होगा ही होगा. So C is the notochord. So C is the answer for this question. Then read the different components from 1 to 4 in the list given below and tell the correct order of the components with respect to their arrangement
फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब हमको आउटसाइड से इनसाइड का अरेंजमेंट बताना है इन अ वुडी डाइकॉट स्टेम। ओके, वुडी डाइकॉट स्टेम में बेटा हमको ये अरेंजमेंट बतानी है। ठीक है, सो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम, फिल्म, सो दीज थिंग्स आर प्रेजेंट। सो नाउ यू लुक एट द डायग्राम। ओके, तो सबसे बाहर पड़ रहा है बेटा फिल्म। ओके, कॉर्क, फिल्म इज नथिंग बट कॉर्क, इट इज द आउटर मोस्ट। ठीक है, दिस इज आउटर मोस्ट। ऑलराइट, ये सबसे बाहर है। उसके बाद आपको मिलेगा फिलोजन, दैट इज कॉर्क खेनियम। फिलोजन के अंदर में आपको मिलेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दैट इज फेलोडम। सो कॉर्क फेलो, कॉर्क फिल्म सबसे बाहर, फेलोडर्म सेकेंड होगा, दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके, उसके बाद बेटा आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, तो यहाँ पे और क्या लिखा है, हाँ सेकेंडरी फ्लोएम लिखा है ना, तो थर्ड आएगा सेकेंडरी फ्लोएम। Okay, so third is secondary phloem, and then comes the xylem. Okay, where he has written wood. So wood refers to xylem, beta. Please do remember, जहां पे भी आप wood देखते हो, wood means xylem. ठीक है, तो आप देखो, जाइल पहले आएगा फिल्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा फिर। ओके, सो 4, 1, 3, 2, सो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब उसने सबसे बाहर फिल्म देखा, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड देन जाइलम। Okay, so xylem has the another name that is wood. Okay, so A is the answer for this question. 125. Clear now? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। अब आपको स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू रीड देम वेरी केयरफुली, ओके, टू गेट द आंसर। ऑल राइट, सो प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम, cells are much thickened at the corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin, provide mechanical support to the growing parts. Okay, these are all the features of what? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा एंड स्क्लीरीज। ओके, तो आपको अभी बताना है, ओके, यू हैव टू टेल विच इज द ऑप्शन फॉर दिस। टेक सम टाइम। ठीक है, याद करो, डाइकॉट स्टेम को याद करो। ठीक है, तो लुक एट द सेल्स and then try to imagine their functions. Okay? All right. So what it says, this type of cell, it is present below the epidermis of dicot stem. So dicot stem, if you have read the anatomy of dicot stem, the first thing that comes to your mind would be colon-chyma. Okay. So what are colon-chyma? Colon-chyma are the living mechanical टिश्यू। ओके, तो वो भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट इट इज अ लिविंग। whereas coming to sclerenchyma also provide mechanical support, but it is dead. sclerenchyma में sclerids and fibers होते हैं, वो dead protoplast होता है उनके अंदर, तो those are dead cells. But collenchyma is a living cell with the mechanical support in it. Okay, now collenchyma has the thickening. ओके, डिपोजिशन होती है सेलुलोज में, हेमिसेलुलोज में, फिर पेक्टिन का। तो पेक्टिन का जब डिपोजिशन आता है ना बेटा, तो याद रखो कोलन काइमा में पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, स्क्लीरन काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। अगर इतना भी आपने जान गया तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देन। सो आपने क्या देखा, डाइकॉट स्टेम। यहाँ पे देख लो आप, एपिडर्मिस के नीचे क्या है बेटा, डाइकॉट स्टेम में एकदम पूरा कोलन कइमा है। ओके, कोलन कइमा इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, राइट? देन सो दिस हैज द थिकनिंग ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है, ये पेक्टिन का, सेलुलोज का सब डिपोजिशन है। ठीक है, इट इज द डिपोजिशन एंड इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। डेफिनेटली यस। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोलन काइमा। ठीक है, I hope that is clear to everyone. All right. Yeah. So coming to next question, which type of plant tissue is being described by the given statements? Okay, तो कुछ statements दिए हैं जिनमें आपको which type of plant tissue it is you have to choose. ठीक है? It consists of long, narrow cells with thick and lignified cell walls having a few or numerous pits. Okay, they are dead without protoplast. On the basis of variation in form, structure, origin, and development, it may be either fibers or sclerids. It provides mechanical support to organs. अगर आपने मेरी बात क्लियरली सुन रही होगी,
तो बेटा आप ना डेफिनेटली यू वुड नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज जस्ट नाउ, जस्ट 2 minutes ago I told the answer for this question also. Like, when I was explaining about colon-chyma, I gave you the difference between colon-chyma and sclerenchyma. So वहां पे आपको difference पता चल गया होगा. ठीक है. So beta, we are talking about sclerenchyma here. Okay, sclerenchyma is what? It is a mechanical support system, and sclerenchyma are made up of sclerids and fibers. ठीक है. तो sclerids and fibers, तो जो fiber होते हैं ना, they are tapery in ends. They look like somewhat like this. ठीक है. तो इनके बीच में यहाँ पे बीच बीच में बेटा पिट्स होते हैं. ओके, सो देर आर प्रेजेंस ऑफ पिट्स नियर एंड देयर. ओके, सो पिट्स होते हैं एंड देर इज लुमेन प्रेजेंट हियर विच इज एन एम्प्टी लुमेन. तो ये खाली लुमेन है. ठीक है, विदाउट द प्रोटोप्लास्ट. इट कंसिस्ट ऑफ नो लॉन्ग नैरो सेल्स विद द लिग्निफिकेशन. ओके, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, तो आप लिग्निफिकेशन देखते हो. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्क्लीरेनकाइमा. ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा इज द आंसर. क्लियर? ओके. So endodermis is present below the cortex. Coming to next question. Endodermis is present below the cortex and options are. Okay, तो statements क्या है? Is called starch sheath in dicot stem. Okay, so is called starch sheath in dicot stem, is having Casparian thickenings in root, is having passage cells also in roots. ठीक है. तो बेटा हैव गिवन यू सम टाइम, आप अभी बताइए मुझे. ऑल राइट, सो यस, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम. सो अब बेटा आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? Endodermis is present below the cortex. That is definitely true. We know, right? So outer layer would be epidermis. उसके बाद cortex region आता है, उसके बाद endodermis आता है. Thereafter, you will be seeing the vascular bundles arranged like this in the steel region. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो, is called starch sheath in dicot stem. Yes. The endodermis में बेटा you will be calling it as the starch sheath in dicot stem. You can see here. Okay, so epidermis is the outermost layer, and then this entire region is called as cortex. Okay, then comes endodermis. Okay, तो endodermis को बेटा हम लोग कहते हैं bundle sheath. Okay, we call it as bundle sheath in the dicot stem. तो dicot stem में हम लोग इसको starch sheath या फिर bundle sheath भी कहते हैं. Okay, then so this endodermis have Casparian thickening in roots. Definitely correct. And having passage cells, that is also correct. So for those students who don't know what is Casparian thickenings and passage cells, बेटा क्या होता है? Let me tell you here. So consider this is endodermis, ठीक है? तो वो सिर्फ रूट्स में होते हैं. ओके, सो जो भी यहाँ पे वैस्कुलर बंडल के पास या फिर आप कह लो जाइलम के करीब में होते हैं. ओके, सो द एंडोडर्मिस विच आर प्रेजेंट वेरी नियर टू द जाइलम. ओके, क्या होता है बेटा? रूट्स में कुछ ऐसा होता है. Okay, so somewhat like this. Okay, so here यहाँ पे मेटाजेलम के पास जो कोई भी आता है ना सेल, तो दिस इज कॉल्ड एज पैसेज सेल. दैट मीन्स यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस पैसेज सेल, ऑल द एंडोडर्मिस ओके सेल्स वी कॉल देम एज कैस्पेरियन थिकनिंग्स. ओके, उन एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरियन थिकनिंग्स होती है. ओके, क्योंकि वाटर यहाँ पे वहां पे ना चले जाए, सीधे जाइलम के थ्रू ही जाना होता है, इसीलिए जाइलम के आगे वाला जो एंडोडर्मिस का सेल होता है पैसेज सेल होता है. ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द रूट्स. ओके, दोनों रूट्स के हैं बी एंड सी. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो व्हाट वी कैन से, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ए बी सी. हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 131. ओके, तो 131 का बेटा आपका आंसर होगा बी. सारे स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है. ठीक है. Coming to next question, match the type of animal tissue listed under column 1 with the location given under column 2. Select the answer which
gives the correct combination of two column. ठीक है, सो आप यहाँ पे देख लो बेटा, सिंपल कोलुमनार, cardiac muscle, adipose tissue, hyaline cartilage, wall of heart epithelium, bone joints, inner lining of stomach and intestine, below the skin in the abdomen, buttocks, thighs, breast and diaphragm. ओके, सो बेटा आप जब यहाँ पे देखते हो, आप ऑप्शंस देखते हो, तो आपको क्या लगता है इसमें, कि व्हाट डू यू थिंक हियर? ओके, तो यहाँ पे आप देखो बेटा, व्हेन वी से अडिपोज टिश्यू, सो दिस अडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, ये हमेशा स्किन के बिलो होती है। मतलब आप कहते हो ना, कुछ आपने खा लिया, आप हेल्दी हो गए, आप चबी हो गए, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत फैट एक्यूमुलेट हो जाता है स्किन के अंडर। ठीक है, तो बिलो स्किन इन द एब्डोमेन में होता है, बटक्स में होता है, थाइस में, एंड देन ब्रेस्ट। सो दैट इज व्हाई द a bit fatter people will have a fatter portions in this area. Okay, these are the fatter regions. So adipose tissue is considered as four. Okay, इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप देखो कार्डियक मसल, कार्डियक मीन्स इट रेफर्स टू हार्ट। ओके, सो हियर इट सेज वॉल ऑफ हार्ट एपिथेलियम, तो दिस वन इज करेक्ट। तो B1C4, B1C4 आप देख के, हाँ C4 आप, यू कैन कैंसल A एंड B है। ओके, सो C4 तो है, B1 कहाँ पे है? ओके, तो आप C को कैंसल आउट कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब आप दूसरे देख लो, A3 डेफिनेटली। Okay, so simple columnar means there you will be seeing this in the stomach and intestine lining. Okay, hyaline cartilage, that is bone joints. So आपको आपका आंसर मिल गया, D is the answer for this question. How simple it was. अगर आपको एक से दो का आंसर पता है तो आपको आराम से सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, so that is why you have to know at least one or two concepts to get the idea of the questions like column 1, column 2, like match the following type of questions. Okay, let's move ahead. Identify the labels in the following diagram. So यहाँ पे कोई डायग्राम दिया है, आपको क्या करना है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। Okay, with the label. So here we can say this is the structure of mitochondria. Okay, it is the structure of mitochondria. We all know that. Okay, so अब mitochondria का structure देख लो बेटा, ऐसा होता है. So it is a bilayered structure. Outer membrane है, inner membrane है, inner membranous space. Okay, तो दोनों के बीच में inner membrane space है. Then we have matrix, ribosomes, it's specialized DNA, semi-autonomous DNA. ठीक है, फिर cristae. Okay, so these inner foldings of inner membrane is called as cristae, finger like foldings, inner folding is cristae. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, A is outer membrane, definitely A is outer membrane, B is inner membrane, okay, B inner membrane है, okay, E बेटा क्रिस्टा है, E is क्रिस्टा, we can आराम से say that, okay, C D इतने क्लियर नहीं है, फिर भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आप देख लो, ए आउटर मेम्ब्रेन, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, बी इनर मेम्ब्रेन। ओके, सी क्रिस्टल, नो डेफिनेटली नॉट, सी क्रिस्टल नहीं है। ओके, सो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपको अपना आंसर मिल गया, आप देख लो इनर मेम्ब्रेन हो गया। नाउ यू कैन वेरीफाई, सी इज मैट्रिक्स, हाँ यस इट माइट बी मैट्रिक्स। Okay, so D is, inner membranous space. Yes, D is inner membranous space and E is crista. So D is the answer for this question. See how simple it was. So if you know the labeling of the diagrams, it is very easy. So that's why I tell you, concentrate more on the tables and diagrams which is given in the NCERT textbook. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इवेंट्स विच अकर ट्वाइस ड्यूरिंग मायोसिस। ओके, मायोसिस के प्रोसेस में दो बार होता है इवेंट। सो यू कैन सी द यू नो statements here like nuclear division of cytoplasm, DNA replication, bivalent formation, equational division. So which do you think is a correct answer फॉर दिस क्वेश्चन? बट आपको कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट लगता है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, मायोसिस क्या हो रहा है बेटा, मायोसिस मीन्स इट इज अ टू स्टेज डिवीजन। तो 2n से nn होता है, फिर nn से nn। ठीक है, तो हियर यू कैन सी इट लाइक दिस। ठीक है, तो मायोसिस अंडरगोज इन टू स्टेप्स। ओके, तो 2n से nn फिर n। तो first meiosis 1 is reductional division and the meiosis 2 would be equational division.
ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो अब बेटा न्यूक्लियर डिवीजन, हाँ, 2 बार होता है न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियाई डिवाइड होता है एट द एंड ऑफ meiosis 1 एंड एट द एंड ऑफ meiosis 2, सो दिस इज करेक्ट। Okay, it occurs twice in meiosis. Division of cytoplasm, yes, just same as nuclear division. तो यहाँ पे भी बेटा at the end of meiosis 1 and at the end of meiosis 2, division of cytoplasm also occurs. Okay, coming to RNA replication. No, RNA replication only happens in the interphase. कि मायोसिस का जो इंटरफेस होता है सिर्फ तब होता है इन द एस फेस। एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सो इट डजंट अकर ट्वाइस। ओके, ये बार बार नहीं होता। देन बाइवेलेंट फॉर्मेशन, तो बाइवेलेंट फॉर्मेशन भी भैया आप देख सकते हो बेटा, मयोसिस के प्रोफेज 1 में होता है। ओके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस, वहां पे आपको बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है, तो ये भी एक ही बार होता है, मियोसिस 1 ऑफ द प्रोफेज 1, सो इट डजंट अकर ट्वाइस। तो इक्वेशनल डिवीजन आप देख सकते हो, मियोसिस 1 से मियोसिस के 2 प्रोसेस तक जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, तो दिस इज ऑल्सो वंस। ओके, तो यहाँ पे कौन सा 2 बार रिपीट हो रहा है? दैट इज ओनली ए एंड बी, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, तो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिर्फ ए एंड बी रिपीट हो रहा है, बाकी सारे एक एक बार ही हो रहे हैं मायोसिस। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। Now, which of the following statements is wrong with respect to cell cycle? हमको cell cycle के with respect to answer देना है. Okay, so M phase lasts more than 95 duration of cell cycle. In human cell, the average duration of cell cycle is 24 hours. Cells are metabolically active during G naught stage. Chromosome number becomes double in S phase. So these are your statements. ठीक है? तो बेटा आप अगर स्टेटमेंट्स देखो तो आप ना डेफिनेटली आप बता सकते हो इंटरफेस। ओके, इंटरफेस टेक्स 95%, नॉट एम फेस। ओके, एम फेज नहीं है, वो इंटरफेस है जो 95% ले लेता है सेल साइकिल के ड्यूरेशन का। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके, दैट मीन्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर? ओके, तो दूसरा देखते हैं हम लोग। इन ह्यूमन सेल द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज 24 आवर्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। इन ह्यूमन सेल द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज 24 आवर्स। Cells are metabolically active during the G naught stage. Yes, definitely they are metabolically active. Only is that they will not proliferate. Okay, वो जीवन से निकल के बाहर आ जाते हैं. They do not proliferate, but they are metabolically active. Okay, so when they have, you know, a occasion like that where they want to regain the proliferation ability, तो वो वापस से कर सकते हैं. ठीक है, देन क्रोमोसोम नंबर becomes double in space. No, this is definitely no wrong. क्रोमोसोम नंबर मतलब प्लॉइडी चेंज होना, ये प्लॉइडी यहाँ पे चेंज नहीं होता, सिर्फ क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होता है। द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल्स, ओके, नॉट द क्रोमोसोम नंबर। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमको ढूंढना है रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। ये एंड डी आर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ए, सॉरी डी। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा डी। ए एंड डी आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो, सो यू हैव टू मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ओके, सो मैचिंग द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, G1 फेस, S फेस, G2 फेस, G नॉट फेस। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल proliferates when needed, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइटोसिस, डीएनए सिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट। ठीक है, तो दीज आर द कॉलम 2 का ऑप्शंस। सो नाउ इट्स वेरी इजी बेटा, आपको पता है एस्पेस में तो डीएनए सिंथेसिस होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, एस्पेस में डीएनए का सिंथेसिस होता है। अब आप देख लो, ओके, बी3 कहाँ पे है? ओके, बी3 इज इन द सी। ओके, सी में बी3 है, अब बाकी को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो G1 4, व्हाट इज G1? G1 में बेटा ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होता है, डेफिनेटली। ओके, इट हैज टू हैपन, व्हाई? बिकॉज जैसे डीएनए भी का अमाउंट भी डबल होता है, वैसे ऑर्गेनल भी डबल होना चाहिए ना, क्योंकि माइटोसिस में डॉटर सेल्स 2 आते हैं, तो दोनों को इक्वल अमाउंट जाता है। तो ए इज ऑल्सो करेक्ट। देन कमिंग टू G2, दैट इज सी। ओके, सी को हो रहा है 2। ओके, तो G2 मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइटोसिस। हाँ, अब
ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन हो गया, डीएनए बन गया, तो अब क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस हो करना है फॉर माइटोसिस दैट अकर्स इन G2 फेज। ओके, सो G0 फेज में क्या होता है, सेल प्रोलिफरेट्स ओनली व्हेन नीडेड। ओके, दे डू नॉट प्रोलिफरेट, G0 फेज में वो प्रोलिफरेशन नहीं होता, सिर्फ कुछ ऐसे केसेस में हो सकता है। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी सी। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर बेटा, आई हैव टेकन लाइक नियरली 25 क्वेश्चंस। ओके, तो सॉल्व करने के लिए आपको इजी हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर मायोसिस। ओके, तो मायोसिस के लिए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो मायोसिस इज अ डबल डिवीजन, it gives rise to four cell. The cells undergoing meiosis may be haploid or diploid. No Bouquet stage is recorded. Pairing or synapsis of homologous chromosomes takes place during zygoting of phase 1 and continues up to metaphase 1. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मायोसिस इज अ डबल डिवीजन, हाँ बिल्कुल ये ठीक है, ये हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स देता है, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, द सेल्स अंडरगो मायोसिस मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, नो बेटा मे बी की बिल्कुल बात ही नहीं आती, यहाँ पे हैप्लॉइड ही है, वी नो दैट इट इज अ परफेक्ट हैप्लॉइड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नो बुके स्टेज इज रिकॉर्डेड, नो बुके स्टेज इज रिकॉर्डेड, बिकॉज स्टेज हमको दिखता है लेप्टोटीन में। ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। पेयरिंग ऑफ सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज 1 एंड कंटिन्यूज अप टू मेटाफेज 1, डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, पेयरिंग या फिर हम कहते हैं सिनेप्सिस, ओके, जो शादी करना, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच की जो पेयरिंग होती है, ये जाइगोटीन में होती है, वी ऑल नो दैट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 1 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से करेक्ट है बेटा, 1 and 4 आर करेक्ट, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी बी। ठीक है, सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, coming to next question. An enzyme brings about increase in reaction time, no change in reaction time, increase in activation energy, reduction in activation energy. बेटा क्या होता है ना, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता है ना, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता है तो इसके लिए हमको एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को बेटा हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अगर ये रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम्स के हो रहा है, तो ए आई जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बहुत ज्यादा लगती है। अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के साथ एंजाइम्स भी हैं, तो एंजाइम्स के साथ अगर प्रोडक्ट बन रहा है, तो अब क्या होगा, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी की हमको जरूरत होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, वो बहुत कम होती है। Alright, so enzyme brings about increase in reaction time, definitely not. Increase in activation energy, नहीं. No change, बिल्कुल नहीं. So answer for this question is D. ये activation energy को reduction करती है। अब आपको प्रूव करने के लिए आप इस डायग्राम को देख लो, इट इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। तो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट है, आप यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लो। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट है, देयर इज अ रिएक्टेंट एंड देयर इज अ प्रोडक्ट हियर। अब आप देख लो, विदाउट एंजाइम कितनी एक्टिवेशन एनर्जी हमको चाहिए, सो मच एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलके हम ट्रांजिशन स्टेट में देख सकते हैं, विच इज अ वेरी अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, वो एक बेहद ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है, वहां से निकल जाता है केमिकल रिएक्शन, तो उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, बट कितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की हमको जरूरत लगी यहाँ, बट वही चीज आप यहाँ पे देख लो, विथ एंजाइम थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी हमको जरूरत है। ओके, सो व्हाट हैपेंस, सो रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सो कॉलम 1 विथ कॉलम 2 यू हैव टू मैच। स्टार्च स्टेरॉइड NaCl RNA, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, स्टोरेज प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल। सो बेटा स्टार्च हम कह सकते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट है, डेफिनेटली स्टार्च स्टोरेज वाली है। ओके, तो आपको, आप देख सकते हो आरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हाँ बिल्कुल आरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, NaCl इनऑर्गेनिक है, हाँ, तो आपको इतना तो आइडिया मिल गया ना, आप देख लो अभी। ए आर किधर है, अच्छा बी में है, AR। ओके, AR हो गया, देन आप क्या देख सकते हो, आप CS, डेफिनेटली मैंने बोला ना, इंडिया सीरीज है इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, RNA, DP,
प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सिंपल था बेटा, मैच द फॉलोइंग। आप देख लो, आपको एक भी पता चल गया तो बाकी सारों का हिंट आपको मिल ही जाता है। ठीक है, सो विल गेट द हिंट ऑफ अदर्स ऑल्सो। क्लियर? ओके। द स्ट्रक्चर शोन बिलोंग्स टू विच अमीनो एसिड? Okay, there is a structure shown here. So, this structure belongs to which amino acid? Okay, so glycine, lysine, valine, isoleucine. बेटा आपको पता ही होगा, जब हम अमीनो एसिड पढ़ते हैं तो इसमें एक अमाइन ग्रुप होता है, एक COOH होता है। ओके, सो वन इज अमाइनो, अनदर वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड वन सेंट्रल कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन। ठीक है, एंड देन एक H होता है और एक R होता है। तभी आर की जगह में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आर की जगह में H भी हो सकता है, या फिर CH3 हो सकता है। ओके, बहुत सारे कुछ भी फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, कोई भी साइड चेन हो सकता है। ठीक है, तो अब द वेरी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ओके, जो मैंने आपको बताया था अभी था पढ़ाते टाइम, वेरी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मीन्स जिसमें RH हो सकता है। तो RH होगा तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और वो कौन सा है बेटा? वो है ग्लाइसिन। अब आप देख लो, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है R=H इज ग्लाइसिन, R=CH3, I told you right, that is alanine, R=CH2OH is serine. So glycine बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देन holoenzyme is the complete enzyme consisting of a coenzyme and a cofactor. Select the option that correctly identifies the nature of the coenzyme and cofactor. ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे देख लो, the enzymes are of two type. One is simple enzyme, another one is conjugated enzyme. So simple enzyme क्या है? So those enzymes are all made up of proteins. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. आपको पता है ये चीज तो, है ना? तो अब आप देख लो, तो जो कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं उसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जैसे देख लो यहाँ पे जो अपो एंजाइम है बेटा, ये प्रोटीन पार्ट है। ओके, ये होता ही होता है, अब एंजाइम है तो प्रोटीन होना जरूरी है। बट यहाँ पे कॉन्जुगेट एंजाइम के साथ विद द प्रोटीन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट, दैट इज कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर होता है, दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड देन इसको टोटल हम बोलते हैं होलो एंजाइम। अब आप देखो बेटा, अगर अपो एंजाइम तो है, प्रोटीन पार्ट तो है, एंजाइम इज देयर, ये कोफैक्टर नहीं है तो वो एक्टिव एंजाइम नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब वो एक्टिव एंजाइम कहलाता है तो इसमें अपो एंजाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपो एंजाइम इज प्रोटीन पार्ट, कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड नाउ व्हेन यू रिमूव द कोफैक्टर फ्रॉम द एंजाइम देन कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। तो इसीलिए इनको साथ में रखना होता है, जैसे दोनों एक कपल है, पेयर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लो, अपो एंजाइम प्रोटीन था, तो ये नॉन प्रोटीन वालों को दोनों को हटा दो। ठीक है, वेरी गुड। देन कोफैक्टर वाज नॉन प्रोटीन। ठीक है, तो अगेन सी को हटा दो, ये इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अपो एंजाइम वाज प्रोटीन, कोफैक्टर वाज नॉन प्रोटीन, दोनों को मिला के हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, देन the given figure shows the diagrammatic representation of a section of chloroplast. Few parts are marked as A, B, C, D, E. Combination of which parts is responsible for trapping the light energy and also the synthesis of ATP and NADH. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम दिया है क्लोरोप्लास्ट का। तो उस क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में बेटा यू हैव टू सी, ओके, सो विच ऑर्गेनल्स या फिर अब जो कोई भी पार्ट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रैप करने के लिए लाइट एनर्जी को, एंड दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देख लो। इन प्लांट्स द लाइट रिएक्शंस अकर विद इन द क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड्स। ओके, थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए लाइट रिएक्शन जो वर्क होता है वो थाइलाकॉइड्स में होता है, इंपॉर्टेंट। देन when light reaction reaches the pigment molecules, it energizes the electrons, and those electrons are taken part in the electron transport chain in the thylakoid membrane. ठीक है, every step in the electron transport chain brings each electron to lower energy and harnesses energy by producing ATP and NADPH. ठीक है, so the light reaction are called as photochemical phase of photosynthesis which occurs in the grana of the thylakoid. ठीक है,
तो थाइलाकॉइड में भी हो रहा है, उसके अलावा जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? इट अकर्स इन द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में हो रहा है, जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय फिक्सेशन अकर इन द स्ट्रोमा। ठीक है, तो अब आप देख लो, ए इज द मिडिल लैमेले, मतलब दो ग्राना के बीच का पार्ट है, यहाँ पे होगा, डेफिनेटली होगा। देन बी में होगा, दोज आर थाइलाकॉइड, सी स्ट्रोमा। ओके, तो ए बी सी तीनों में होता है। ओके, सो ए बी में लाइट रिएक्शन होगा, सी में डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 179, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो, फंगाई, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आप देख लो यहाँ पे, ये करेक्ट है। प्लांट इज सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यस डेफिनेटली। एनिमेलिया सेल वॉल इज एब्सेंट, बिल्कुल सही। मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, नो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। ओके, सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इनकरेक्टली मैच्ड बेटा बी है। ठीक है, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 187 क्वेश्चन है। Which of the following is responsible for the formation of embryonic shoot called axillary bud? ओके, तो एम्ब्रियोनिक शूट बन रहा है जिसका नाम ऑक्सिलरी बड है। तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? विच मेरिस्टम? लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, बोथ बी एंड सी। ओके, तो बेटा आप जब पढ़ते हो मेरिस्टम, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल का काम क्या है? एक्सिलरी बड्स को बढ़ाना, दैट इज शूट को बढ़ाना। ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो लेंथ को बढ़ाता है बाय प्रोड्यूसिंग एक्सिलरी एंड द लैटरल शूट्स। ठीक है, तो लैटरल मेरिस्टम इट हेल्प्स इंक्रीजिंग द गर्थ। ठीक है, ये मोटा करता है प्लांट को, तो गर्थ को बढ़ाता है। ठीक है, तो इंटरकैलरी ओवरऑल ग्रोथ करता है सारे प्लांट का। ठीक है, तो अब आप देख लो यहाँ पे। ओके, अब आप देख लो यहाँ पे, सो एक्सिलरी बर्ड का जो एम्ब्रियोनिक शूट होता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल है बेटा एपिकल मेरिस्टम। एज आई हैव टोल्ड यू, दे गिव आउट द ऑक्सिलरी बर्ड और द लैटरल बर्ड, जिससे प्लांट ग्रो करता है, शूट ग्रो करता है। ठीक है, चल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, chromosomes having equal and almost equal arms are called? ठीक है, सो इक्वल आर्म्स और ऑलमोस्ट इक्वल आर्म्स किसमें होते हैं? क्रोमोसोम्स का कौन सा स्टेज या फिर पोजीशन है? मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, एसेंट्रिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो कौन सा है आपका ऑप्शन हो सकता है। लुक एट दिस डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो अब आप यहाँ पे देख लो, टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। सो मेटासेंट्रिक में बेटा इक्वल लेंथ ऑफ द आर्म्स है, इक्वल लेंथ ऑफ द आर्म्स। ओके, सो इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल आर्म्स इज मेटासेंट्रिक। ठीक है, सो मेटासेंट्रिक इज द आंसर। Okay. So 193 axoneme with 9+2 microtubular arrangement, okay, occurs in cilia, flagella, both A and B centriole. Okay, so now you have to look into the diagram which is given in your NCERT. द आपकी एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द डायग्राम। तो अब यहाँ पे देख लो, ये जो साइड्स में जो आपको दिख रहा है ना, दो रिंग टाइप, दिस इज ट्यूब्यूल्स, दैट इज ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल, दोनों को मिला के हम डुबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हैं। तो जो डुबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है ये 9 है, and जो बीच वाले जो है ये 2 है। तो दिस इज कॉल्ड एज 9+2 दैट इज प्रेजेंट इन द एक्सन। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये पेरिफेरल वाले डबल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब आपको 9+2 दिख रहा है, तो ये किस में होगा? ये दोनों में होता है बेटा, सीलिया में भी एंड फ्लैजेला में भी। सो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, दोनों में होता है। क्लियर? ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। Lysosomes are specialized vesicles. Okay, so lysosomes are specialized vesicles in dash that contain digestive enzymes for the breakdown of food. A related organelle known as vacuole, which is found in dash, also contains enzyme, but in addition may act as a storage organelle for nutrients or water. ठीक है, तो ऑप्शंस है यहाँ पे, एनिमल्स, प्लांट फंगाई, प्लांट एनिमल फंगाई, फंगाई एनिमल प्लांट, प्लांट एंड फंगाई विद एनिमल्स। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, लाइसोसोम्स आर द स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स इन एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल्स में होते हैं,
that contain digestive enzymes for the breakdown of food. Okay. Now, a related organelle known as vacuole is found in plants, okay, and fungi. Okay, plant and fungi, दोनों में. Okay. So plant and fungi also contain enzyme, but in addition as the storage organelle for nutrients and water. ठीक है. तो आपका आंसर है बेटा ए. ठीक है, ये सारे गलत आंसर्स हैं. ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. आपको यहाँ पे कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. लाइसोसोम बेटा एनिमल्स में होता है. दे हैविंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. Clear? So that's all for this class. If you have any doubts, you can make sure you can discuss with your classmates, with your respective teachers. Okay? So I have solved literally like 25 questions. So I hope you have understood whatever I have taught. We'll see you after the next EIT. Okay? Till then, bye-bye. Take care of yourself. Thank you so much.